Hello students, let's talk about another very important topic of the chapter establishment of company rule in India, that is the Battle of Plassey and Battle of Buxar. These two battles were very important, were very significant in the history of modern India, as it was these battles which had laid the foundation of British rule in India. If the Britishers were defeated in both these two battles, they would not have been able to establish their rule over India. It was the victory over both these two battles that has prepared a way for the establishment and consolidation of British rule in India. See this, the map of India. During the period of 18th century, after the declination of the Mughal Empire, India was divided into a number of small and big kingdoms. Awadh was there, Bengal, Hyderabad ruled by the Nizam, Maratha, the Rajputs. Then to the north, the Sikh, there was a powerful kingdom of the Sikh established by Maharaja Ranjit Singh. Then in south, we will see the kingdom of Mysore. To the extreme south, you will find the kingdom of Travancore. To the east of Travancore, there was the kingdom of Carnatic with its capital at Arcot. So here we talk about the occupation of Bengal, which was the Bengal region was one of the richest and prosperous state of India at that time. Bengal was rich in agricultural output. There were many manufacturing centers in Bengal, and Bengal at one time was a part of the Mughal Empire, but after the death of Aurangzeb, it remained under the control of Mughals, but it started enjoying autonomous power. See here, in 1700, Murshid Quli Khan, he was made the Diwan of Bengal. Diwan means governor, by the Mughal Emperor Aurangzeb. And just after 4 years, in 1704, Murshid Quli Khan transferred the capital of Bengal to Murshidabad. Murshidabad was a famous city of Bengal, still it is existing, and this city was founded by Murshid Quli Khan. Then, after the death of Aurangzeb, in 1717, the Mughal emperor, whose name was Farrukh Siyar, I forgot to mention the name of this emperor. His name was Farrukh Siyar. In 1717, the Mughal emperor Farrukh Siyar issued Golden Farman, granting the East India Company, not East India Company, the freedom to export and import their goods in Bengal without paying any taxes. मतलब 1717 में जो मुगल राजा थे फर्रुख सियार, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रिविलेज दिया कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है बिना कोई टैक्स दिए. ठीक है, ये फरमान जो जारी किया मुगल एम्परर फर्रुख सियार ने, इसको गोल्डन फरमान कहा अंग्रेजों ने. ये हमारे लिए गोल्डन फरमान है. तो बिना टैक्स के अब आप ट्रेड कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है बंगाल में. ठीक है, और उसी साल इन 1717 मुर्शिद कुली खान वाज मेड द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बाय द सेम मुगल एम्परर फर्रुख सियार. आफ्टर फ्यू ईयर्स, in 1756, Siraj-ud-Daulah, he became the Nawab of Bengal, and it was during the time of Siraj-ud-Daulah that conflict was started with the Britishers. Siraj-ud-Daulah started making a demand from the company to pay taxes on their goods. सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं था कि बिना टैक्स के अंग्रेज ट्रेड करें, इसलिए उसने डिमांड कर दिया कि अंग्रेजों को टैक्स देना होगा. और अंग्रेज एक और काम करें, दे शुड स्टॉप द फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम. फोर्ट विलियम अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था कलकत्ता में, जिसको अंग्रेज लोग बिना परमिशन के, बिना नवाब के परमिशन के एक्सटेंड कर रहे थे, उसको और बड़ा बना रहे थे, उस फैक्ट्री को हथियार जमा कर रहे थे.
गोला बारूद जमा कर रहे थे किले में विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द नवाब. सो दिस वॉज नॉट लाइक बाय नवाब एंड he ordered the Britishers to stop such type of construction or extension of Saint Fort William, but the Britishers refused to comply. लेकिन अंग्रेज़ों ने बात नहीं मानी, क्योंकि अंग्रेज उस समय थोड़ा फ्रांसीसियों को हराने के बाद थोड़ा सा हौसले में थे एकदम कि बस अब हम लोग ताकतवर है, अब नवाब को भी हम लोग हरा देंगे, नवाब की बात हम लोग क्यों मानेंगे. नहीं माने बात. तो ऑन 20 जून 1756 नवाब अटैक एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट. फोर्ट विलियम को नवाब ने हमला करके अपने कब्जे में कर लिया. ठीक है. जब नवाब की आर्मी फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में किए तो बहुत सारे अंग्रेज वहां से भाग गए जो फोर्ट में थे, लेकिन कई लोग पकड़ा गए. और एक बहुत ही ट्रेजिक घटना घटी. ट्रेजिक घटना ये घटी कि नवाब के जो सिपाहियों ने क्या किया, जो भी अंग्रेज बंदी बनाए गए उसमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे, लगभग 146 लोगों को ना एक छोटे से ना कमरे में इन लोगों ने बंद कर दिया. नवाब के सिपाहियों ने 146 अंग्रेजों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, एक छोटे से कमरे में, डंजन तहखाना में बंद कर दिया. रात भर वो लोग बंद रहे अंग्रेज, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे. जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो 146 में 123 लोग मर गए थे, जिसमें औरतें और बच्चे थे. कैसे मर गए पता है ना? सफोकेशन से, ऑक्सीजन की कमी से. छोटे से कमरे में जिसकी कैपेसिटी है 30 से 40 लोगों की, वहाँ पे 150 लोगों को अगर आप भेड़ बकरियों की तरह भर के रख दोगे तो जानवर रहेंगे तो वो मर जाएंगे, तो ये लोग इंसान थे. इस घटना को कहा जाता ब्लैक होल इंसिडेंट. जब ये खबर मद्रास पहुंची, मद्रास वाज द मेन सेंटर एट दैट टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड व्हेन दे got the news that the Nawab had brutally killed many English women and children in Fort St. William, this greatly annoyed the Britishers and they decided to take revenge of it. So the Britishers, they sent their troops to fight against Nawab Sirajud-Daulah under the leadership of their commander Robert Clive, and the battle was started at Plassey. Plassey is a place 30 km from Murshidabad. In this battle, you all know, Nawab was defeated and he was killed. So see, these are the causes of the Battle of Plassey. Primary and secondary causes. The real motives of the English were to establish rule over Bengal. Sirajud-Daulah was not liking the British design. Humiliating attitude of the Britishers towards the Nawab. Then misuse of commercial concession. The Britishers were trading without paying any taxes. English also supported the enemies of the Nawab, which annoyed Nawab. Nawab's anti-Hindu policy. British fortification of Calcutta, I said. ब्लैक होल ट्रेजेडी, वही जो 143 लोगों को बंद कर दिया नवाब के सिपाहियों ने. इसमें 127 लोग, सुबह जब दरवाज़ा खोला गया 127 लोग सफोकेशन से मर गए थे. अंग्रेज़ औरतें और बच्चे भी थे उसमें. ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको कहा जाता है. उसके बाद ट्रीटी ऑफ अली नगर साइन किया सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों ने, लेकिन बात नहीं बनी. ब्रिटिश अटैक ऑन चंदेर नगर. तो दीज आर सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ पलासी. So what happened after Plassey? Mir Jafar was made the Nawab of Bengal by the British, and after becoming because Mir Jafar was the Prime Minister of Nawab Sirajud-Daulah, and you all know that he secretly aligned with the Britishers before the Battle of Plassey. तो मीर जफ़र ने अंग्रेज़ों की पूरी मदद की थी, गद्दारी किया सिराजुद्दौला के साथ, और गद्दारी की सज़ा मिली मीर जफ़र को. क्या रिवार्ड मिला? सॉरी, नॉट सज़ा, रिवार्ड क्या मिला? आफ्टर द बैटल मीर जफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. And Mir Jafar granted undisputed right to the company to freely trade in Bengal. Then Mir Jafar also paid a sum of rupees 1,77 lakh as compensation for the attack on Calcutta by Sirajud-Daulah. Sirajud-Daulah ने जो हमला किया था फोर्ट विलियम पे, उसका कंपनसेशन दिया मीर जफर ने 1,77 लाख रुपए कंपनी को. लेकिन 3 साल के बाद ही इन 1760 मीर जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया. मीर जफर वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन. और उसके बाद हिज सन इन लॉ, मतलब मीर जफर का जो सन इन लॉ था, मीर कासिम, ही वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. मीर कासिम was considered to be one of the best Nawab of Bengal, not for the Britishers but for the people of Bengal.
व्हाट इट डिड, मीर कासिम अबॉलिश ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड, मतलब अंग्रेज अभी सिर्फ ट्रेड करते थे बिना टैक्स का, मीर कासिम ने सबका ट्रेड टैक्स को माफ़ कर दिया, कोई भी अब बंगाल में ट्रेड कर सकता है विदाउट गिविंग एनी टैक्स. दिस वाज नॉट लाइक बाय द ब्रिटिशर्स एंड द ब्रिटिशर्स टोल्ड मीर कासिम ओके टू टेक बैक दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को वापस लीजिए, आप सबको आप फ्री ट्रेड करवाइएगा तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा और हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा. अंग्रेजों ने ये कहा, मीर कासिम नहीं माना और एक लड़ाई में मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया और मीर कासिम क्या हुआ, बंगाल छोड़ के भाग गया. ठीक है, लेकिन वो भागा नहीं, ही फ्लेड टू अवध. अवध उत्तर प्रदेश को बोलते हैं यहाँ, और वहाँ पे मीर कासिम ने एक अलायंस बनाया विथ नवाब शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, है ना, और तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया ऑन 22 अक्टूबर. ईयर इज 1763, इट इज नॉट बीइंग मेंशन. ऑन 22 अक्टूबर 1764 in the plain of Buxar, Bihar, the combined forces of Mir Qasim, Nawab Shujauddaulah and the Mughals but were defeated by the English forces. यहाँ भी इंडियन आर्मी, इंडियन रूलर्स हार गए. ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो. इसमें रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, हेक्टर मुनरो थे. रॉबर्ट क्लाइव को छुट्टी में भेज दिया गया था. और मुगल एम्परर शाह आलम, मुगल गवर्नर ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड द गवर्नर ऑफ बंगाल मीर कासिम. कॉजेस क्या था, मीर कासिम वाज द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ ऑल नवाब, मैंने अभी आपको बताया. ही वांटेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, वो अंग्रेजों के नज़दीक नहीं रहना चाहता था. इसीलिए आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि बंगाल का जो राजधानी था मुर्शिदाबाद, उसको शिफ्ट करके मुंगेर कर दिया. मीर कासिम हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर बिकॉज ही वांटेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस. He also started organizing his army on the line of European system. He made arrangement for the manufacture of firearms at मुंगेर में उसने कारखाना बनाया बंदूकों का. ये सब देख के अंग्रेज थोड़ा घबरा रहे थे कि कहीं मीर कासिम हमसे लड़ने की तो तैयारी नहीं कर रहा है. और उसके बाद जब सारे ट्रेड टैक्स को माफ़ कर दिया मीर कासिम ने, तो ये आग में घी डालने का काम हुआ और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया नवाब के पद से. लेकिन मीर कासिम शांत नहीं बैठा. ही मेड अलायंस ओके एंड ही डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. कोशिश अच्छी थी मीर कासिम, और वो शुजाउद्दौला जीत जाते तो अंग्रेज को बंगाल छोड़ के भागना पड़ जाता. कोशिश बहुत अच्छी थी इंडियन फोर्सेस की, लेकिन हार गए हम लोग. वी वर डिफीटेड. एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट फ्रॉम द मुगल एम्परर. मुगल एम्परर से दीवानी राइट मिला. क्या था दीवानी राइट? द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द रीजन्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. अब अंग्रेज टैक्स कलेक्टर बन गए थे. ठीक है, नाउ दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द रीजन ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. ओके, इससे फ्रॉम द मुगल एम्परर. अब बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए सब्सिडी देने का वादा किया मुगल एम्परर को कि आपको सालाना 26 लाख रुपया दे दिया जाएगा पेंशन. मतलब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द मुगल एम्परर बिकेम द पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सी मतलब द मुगल एम्परर नाउ केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड व्हाट अबाउट द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला? शुजाउद्दौला वाज मेड टू पे अ ह्यूज वार इंडेमनिटी ऑफ 5 मिलियन. 50 लाख रुपए हरजाना नवाब ऑफ अवध को देना पड़ा था अंग्रेजों को. और मीर कासिम क्या हुआ? मीर कासिम फ्लेड अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. जब मीर कासिम ने देखा कि वो हार रहा है तो वो मैदान से, युद्ध के मैदान से वो निकल गया, भाग गया. उसके बाद क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं है. हिस्ट्री को उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है. तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर वाज अगेन बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज स्टार्टेड इन बंगाल. 2 तरह की सरकार बन गई बंगाल में. एक सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक निजामत वाला काम करेगी. निजामत मीन्स मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिस्पेंसिंग द जुडिशियल फंक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर वी फाइंड अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज स्टार्टेड इन बंगाल वेयर द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वाज entrusted with the East India Company and the function of the maintenance of law and order and judicial function were rest with the Nawab of Bengal.
So this dual system, the system of dual government existed in Bengal till 1772. When Warren Hastings became the governor of Bengal, okay, when Warren Hastings he became the governor general of Bengal, he abolished the dual system in Bengal. नवाब को हटा दिया वारेन हेस्टिंग ने, और पूरा बंगाल, नाउ द होल ऑफ बंगाल, द होल रीजन ऑफ बंगाल now came under the direct political control of the East India Company. Okay students, thank you.